उसको बोलूंगी कि भाई सब ठीक होने वाला है, बस जैसे कर रही हो करते रहो, लगे रहो, अपने काम पे लगे रहो, बट डरना नहीं। एक 9 to 5 का जॉब नहीं है, ये जॉब है जहाँ पे आई वुड से प्रोफेशन है, जहाँ पे आप 24 घंटे किसी चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। So guys, we have our guest with us, Major Prajakta Desai ma'am. Welcome to the session. जैसे किसी मतलब मैम की तारीफ में कुछ कहना तो वही बात हो जाएगी, सूरज को दिया दिखाने वाली बात. Ma'am has donned a lot of hats and have worn each of these hats with panache. So ma'am has been an NCC cadet, then an OTA cadet, then she became an officer in the forces. In 2011, she got commissioned into the Army Air Defense, then into Army Aviation Corps, had a splendid career there, manned UAVs and everything aviation that is related to Army. And not just that, moving out of services, she is a motivational speaker. She guides a lot of aspirants. She motivates a lot of females who wants to join the forces and wants to prove their worth. And she's also an animal lover, as we all have seen multiple times. So welcome to Vardishala ma'am. We are feeling privileged to host you today. How are you now? Thank you so much, Akshay. I mean, there were many people who kept asking me, when are you going to have a session with Akshay Badola sir? So many times. So I said, okay, finally now we've got the opportunity to connect. Thank you, ma'am. Students were really excited. Like they were keep on asking that let's have a session with ma'am. We really want to interact with ma'am. So we thought let's plan this out today. So guys, ma'am is here. Thanks a lot for joining the session, man. And students, you can share the session. You can post your doubts in the comments, and we'll take them as and when it fits into our conversation. So, ma'am, let's start. Let's start from the very beginning, the root of everything. What was the driving force that pushed you to don those olive greens? And another interesting thing is, ma'am, you have been into the force for a long duration. So Major Prajakta Desai's advice to young Prajakta who just fancies to don a uniform as to what are the pitfalls or the ways one should not join the forces, what are the external things that should not be the driving force for joining the forces? Okay. So much of a huge question, I tell you. I'll answer the first part और मैं हिंदी में भी बोलूंगी because somebody in the comment was saying भाई okay प्रकाश परमार sure हम हिंदी में भी बात करेंगे, हम इंग्लिश में भी बात करेंगे, इंग्लिश में बात करेंगे. So आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसका बताऊंगी मैं. ड्राइविंग फोर्स, और मैं हमेशा बताती हूँ, आई होप पीपल आर नॉट गॉट बोर्ड विद दैट. मुझे जिंदगी में कुछ ऐसा करियर करना था जो सबसे अलग हो. मैं 80s लेट 80s की बॉर्न हूँ, तभी लड़कियों को एक सेट पैटर्न में रहना, सेट पैटर्न के कपड़े पहनना, ऐसे ही करियर करना, इसी टाइम पे शादी होनी है, बच्चे होने हैं, ये सब तो एक खाका बन चुका था जिसमें एक औरत को शायद हमने फिट कर दिया था, कहा था बेटा आपकी जिंदगी कुछ ऐसी ही चलेगी. छोटी छोटी चीजें जब आप प्याज काटते हो, आप एक्स्ट्रा चीजें फेंक देते हो निकाल के, तो लोग कहते हैं ऐसे मत करो, शादी करोगी सास डांटेगी, समथिंग लाइक दिस. तो उस समय से मैं हूँ, बट शायद मेरी फैमिली को ऐसी सब चीजों में उन्होंने कभी हम पे रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई. अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बताना चाहूंगी तो दे वर ऑलवेज ओपन. उन्होंने हमेशा कहा जो बेटा आपको अच्छा लगता है आप वो करियर करो. कभी स्पेसिफिक टाइप के कपड़े पहनने हो या ऐसे ही करना हो, वो सब नहीं. यस, हमारे घर पे भी रिस्ट्रिक्शंस होती, डिसिप्लिन होती, पर ये स्पेसिफिक टू गर्ल्स एंड बॉयज ऐसा कोई बाइफर्केशन नहीं था मेरे घर में. और हमेशा मुझे चीजों को उल्टा करने की आदत है. अगर कोई मुझे कहे कि तुम ऐसे करोगी तो मैं थोड़े उल्टे दिमाग की हूँ, मैं कहूंगी नो, दिस इज नॉट द वे आई विल डू, आई डू इट माई वे. मैं हमेशा ही ऐसे रही हूँ. मुझे बहुत बार ऐसा फीडबैक भी दिया गया है कि तुम अपने मन की करती हो, और कभी कभी मुझे उस पर गर्व रहता है कि कभी तो दुनिया में हम अपने मन की करें, कितने हम गुलामी सहेंगे किसी और की. तो बढ़िया है कि जिंदगी में जो आपको चाहिए आप वो पहली चीज करो. मुझे इसका फोकस आया क्योंकि आर्म फोर्सेस में जाना एट अ वेरी अर्ली एज. सोचो आप, जैसे यू वर योरसेल्फ एन एनडीए कैडेट, बहुत जल्दी आप एट द एज ऑफ 21 आप एक कमीशन्ड ऑफिसर बन जाते हो, क्लास 1 कमीशन ऑफिसर.
आपकी गैजेट नोटिफिकेशन जो होती है, मतलब द प्रेसिडेंट गिव्स यू दिस रैंक एंड नोबडी कैन टेक इट अवे फ्रॉम यू। आपकी कमिश्निंग वो प्रेसिडेंट से देती है। इतने जल्दी एज में आप एक अथॉरिटेटिव या ऐसे मुकाम पे पहुंच जाते हो जहां पे आप आपकी एक्सपर्टीज यूज कर सकते हो। मतलब अगर सिंपल लोगों को बोलना चाहोगे तो आपके नाम का स्टैम्प होगा और आप साइन करने के लिए ऑथराइज होते हो। तो ये जो चीजें हैं, ऑलिव ग्रीन अपना यूनिफॉर्म है, एंड दैट इज अ करियर लेस ऑर्डिनरी। इट इज नॉट अ नॉर्मल लाइफस्टाइल। ये एक 9 to 5 का जॉब नहीं है। ये जॉब है जहाँ पे आई वुड से प्रोफेशन है, जहाँ पे आप 24 घंटे किसी चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हो। और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ प्रोजेक्ट्स करना और काम करना नहीं है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी की जिंदगी है। आपके डिसीजंस के ऊपर somebody's लाइफ इज एट स्टेक। यू नो, वेपन्स, मैन, मटेरियल, इन सब की जिम्मेदारी होती है, विच गोज इन $billion। बट सबसे बड़ा क्या है, आप किसी की जिंदगी के लिए, उसकी आगे के करियर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हो एट सच अ अर्ली एज। आप स्टार्टिंग से, अगर सिंपल वर्ड्स में बताना चाहूंगी फॉर everybody who is in civil domain as of now, you are managers of a person from day one। अगर जो कॉर्पोरेट में काम करते हैं उनको सिंपल बताऊंगी, आप स्टार्ट करते हो एज अ मैनेजर। You do not start as anything else. You start as a person who's responsible for so many people in their career. Obviously, the uniform, it has its own charm, the stars, the Ashok Stamp, and it is for me, it was something a less chosen path. हर कोई इस प्रोफेशन में नहीं जाना चाहता। और मुझे पर्सनली, मेरे देश के लिए, मैं हमेशा आप कहती हूँ और लोगों को बताती हूँ कि जिस मातृभूमि में आपने जन्म लिया है, आपका कुछ क्या कहते हैं उसको, आपकी एक देन होती है। यू आर सपोज टू गिव समथिंग बैक ऑफ योर लाइफ टू योर मदरलैंड। And this is what I thought, if I am putting in my 10 years or my X amount of years in service for the nation, that is my contribution towards my nation. And the second part, what did you ask me? Can you repeat the second part? मैम, Yeah, जो वो मेजर, I remember. What should I be telling my younger self? Honestly, मैं खुद को ये बताना चाहूंगी कि डरना नहीं। हर चीज में मैं बहुत डरती थी, हर चीज में। ठीक है, आगे जाने की जिद थी, कभी गिव अप नहीं किया, बट डर तो हमेशा लगता था। मैं कहूंगी कि जो भी लाइफ में आपके उतार चढ़ाव आए, वो नेसेसरी थे कि आज आप इस मुकाम पे पहुंचो। फॉर एनीबडी इन लाइफ, इफ यू डू नॉट have obstacles in your path, you will not be challenging your brain, you're challenging your courage, your wits to overcome that। क्या फायदा उस लाइफ का जो सिंपल जाती है। यहाँ मैं लोगों को बताना चाहूंगी कि आपने वो व्हाइट वाटर राफ्टिंग की है। राफ्टिंग का मजा कब आता है, जब बहुत सारे वहां पे वर्लपूल्स आते हैं, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आते हैं, जब पानी ऊपर नीचे होता है, तब आपकी राफ्ट जब ऊपर नीचे होती है, तब चैलेंज होती है, तब मजा आता है। सिंपल शांत पानी में जाना किसी को पसंद नहीं है, तो लाइफ भी ऐसी ही है। यू हैव टू हैव ऑब्स्ट्रक्शंस इन लाइफ, ऑब्स्टिकल शुड कम, और जब आप उसको पार करोगे, आप एक बेहतर इंसान बनोगे, आप खुद पे विश्वास करना स्टार्ट करोगे, आपका नजरिया बदलेगा। अगर ये सब चीजें होनी इंपॉर्टेंट है, तो मैं जो छोटी प्राजक्ता है उसको बोलूंगी कि भाई सब ठीक होने वाला है। बस जैसे कर रही हो करते रहो, लगे रहो, अपने काम पे लगे रहो, बट डरना नहीं। ये जरूर बहुत बोलोगे। बहुत खूब मैम। सो वी आर स्टार्टिंग विद अ सिक्सर ऑन द वेरी फर्स्ट बॉल मैम। मैम, एक और सवाल, जो आपने ये बात की कि सामाजिक रूढ़िवादिता की जो बेड़ियां होती हैं उनको तोड़ना पड़ता है एक फीमेल कैंडिडेट को, जो समाज की रिस्ट्रिक्शंस होती है ना सिर्फ उसको फाइट करना पड़ता है, अपितु जो सोशल डॉगमास है उनको भी ओवरकम करना पड़ता है। मैम, वो ऐसा आपके करियर से लगता है कि आपने राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग यू स्टार्टेड विद एनसीसी इटसेल्फ, और वो भी शायद एयर विंग से। सो मैम, उसका जो वो आपका करेज था, और मैम एनसीसी स्पेसिफिकली फोर्सेज में जाने के लिए क्या एक कोई कुछ जो बच्चे अभी एनसीसी कर रहे हैं उनको क्या वो टेक अवेज हैं जो वो एनसीसी से ले सकते हैं, जो उनको डायरेक्टली फोर्सेज में जाने में हेल्प करेगा, जो उनको अभी एनसीसी के ड्यूरेशन में जब वो है उसमें किन चीजों पे उन्हें स्पेसिफिकली फोकस करना चाहिए? अगर वो उन पे फोकस करेंगे तो वो उनको फ्यूचर करियर्स में हेल्प करेंगी चीजें एनसीसी की। ओके ओके, फर्स्ट थिंग जो आपने कहा कि बेड़ियों को तोड़ना, तो अदर देन एनसीसी मैंने ये चीज जिंदगी में बहुत पहले की। जैसे मैं बता दूं, मैं डरती थी बहुत। पहली बार आई थिंक मैं स्टैंडर्ड 6 में थी, जब आपको पता होगा दही हांडी जो होती है, गोपाल काला जिसको कहते हैं, मुंबई में बहुत फेमस है, महाराष्ट्र में। व्हेन यू क्लाइम ऑन टॉप ऑफ ईच अदर, वो पूरा आप लाइक अ ह्यूमन पिरामिड बनाते हो।
तो बहुत जल्दी मेरे पापा ने तो मुझे ऐसे ना मेरे कजन के साथ उसके कंधे पे बिठा दिया था और कहा कि आज हंडी ये फोड़ेगी। मैं तो बहुत डरती थी, मैंने कहा नहीं भाई, मुझे कहाँ आपने नो ऐसे सिचुएशन में डाल दिया। बट शायद अगर उस टाइम मेरे पापा मुझे फोर्स नहीं करते, बिकॉज लड़कियां तभी नहीं करती थी। इफ आई एम इन स्टैंडर्ड 6 तो आई वुड बी 97 98 की बात कर रही हूँ मैं। उस टाइम लड़कियां तो दही हांडी होली में घर से बाहर नहीं निकलेंगी, बट मेरे पापा ने मुझे लेके गए कि नहीं, लड़के होंगे सो व्हाट, तुम चढ़ोगी हांडी पे, हांडी फोड़ोगी। तो शायद तब मुझे वो फोर्स नहीं करते, तो जो मैंने खुद को है था ना, हम समाज से इतने प्रेरित हो जाते हैं, हम खुद को कभी कभी बेड़िया लगा लेते हैं। तो शायद वो मेरी बेड़िया तभी नहीं टूटती, क्योंकि क्यों, मेरे को घर वालों का सपोर्ट था। तब मुझे रियलाइज हुआ कि अगर आप आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे तो ही आप जिंदगी में कुछ कर पाओगे। कंफर्ट जोन में तो हर कोई रहता है, मतलब मेरे लाइकिंग का जॉब मिले, मेरे लाइकिंग का घर मिले, नहीं, अगर आपके कंफर्ट जोन से आप निकलोगे तभी तो जिंदगी में कुछ कर पाओगे। और सेकंड थिंग, जो आपने एनसीसी की बात करी, यस मैंने एयरविंग एनसीसी की थी। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगी, एनसीसी जो है उसका आपको सही से फायदा उठाना आना चाहिए। व्हाट डू आई मीन बाय दैट? बेनिफिट जो आपको एनसीसी देता है, एनसीसी एंट्री, जैसे टेक्निकल लोगों को रिटन एग्जाम नहीं देनी होती, ऑब्वियसली उनका एक बेंचमार्क होता है कि आपको इतने % चाहिए आपकी इस इंजीनियरिंग डिग्री में तो आपको एसएसबी आएगी। बट एनसीसी का उससे बड़ा फायदा है कि अगर आप एक अच्छे कैडेट हो, अच्छे कैडेट का मतलब उसने बेसिक आपके कोर्स कर रखे हैं, आपकी जो 3 एग्जाम होती है, अगर आपने स्कूल में किया तो आपकी ए ग्रेड ए एग्जाम, या आपने सीनियर में किया तो आपका बी सर्टिफिकेट एंड सी सर्टिफिकेट, 3 सिंपल एग्जाम, या 3 तो छोड़ो, सिर्फ 2 सिंपल एग्जाम देनी होती है, जिसको आपको मिनिमम बी ग्रेड लाना होता है। I think that is much more easier than doing engineering and having that cutoff of 70-75% to get an SSB. तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है जो आई फील बहुत सारे बच्चे लेना भूल जाते हैं। अगर किसी किसी बच्चों को लगता है कि मैं रिटर्न कर पाऊंगी या कर नहीं पाऊंगा, तो बेस्ट है आप एनसीसी अप्रोच से ले। सो इफ यू आर अ मीडियोकर कैडेट बट यू शुड हैव दोज ऑफिसर लाइक क्वालिटी, जब आपके बटालियन से आपके बटालियन से आपके नाम चले जाए फॉर रिकमेंडेशंस, तो यू शुड बी एबल टू यूटिलाइज दैट। सेकेंड थिंग, अब उसका एक छोटा दूसरा डिसएडवांटेज है कि एनसीसी एंट्री से आपको सीट्स कम मिलेगी, विज़ावी आप सीडीएस से जाओगे। तो अगर आपको लगता है कि मैं पढ़ाई करके सीडीएस क्लियर करके अगर एसएसबी का कॉल ले सकती हूँ, वेल एंड गुड, डू दैट। आई वुड से फॉर्म भरो, एग्जाम दो, बिकॉज उसमें आपको सीट्स ऑलमोस्ट डबल मिलेंगी। जैसे मैंने किया, दोनों तरीके से फायदा उठाया। ऑनेस्टली मैं एनसीसी एंट्री से नहीं गई, मैंने पहले ही सोच रखा था, क्योंकि तभी एनसीसी एंट्री की सीट्स आती थी 3, 5, 7 और 20 आती थी सीडीएस की। मेरे टाइम तो सीडीएस की सीट ही 10 थी। तो मैंने सोचा व्हाई शुड आई गो फॉर समथिंग, अगर मुझे थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़े, क्यों ना मैं वो मेहनत करूं। तो आपके पास दोनों वेज है इन विच यू कैन डू इट। Third thing, my advice to all the NCC cadets there, it is very important to understand कि because आप NCC cadet हो, आपके लिए SSB ना मुश्किल होगी ना आसान होगी। SSB में जो assessor है, their only work is to assess the opposite candidate whether they are fit to become army officers. मैं दोबारा हिंदी में भी बोलूंगी, एज अ असेसर उनका यही काम है जानना कि क्या जो बच्चा हमारे पास आया है कैंडिडेट, क्या उसमें क्षमता है ऑफिसर बनने की। तो आप एनसीसी से हो या नॉन एनसीसी से हो, आप गांव से हो शहर से हो, कोई चीज, आप बड़े स्कूल से हो या आप एक प्राइवेट या गवर्नमेंट स्कूल से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने ऑफिसर लाइक क्वालिटीज है तो आप ऑफिसर 100% बनोगे। ये चीज बहुत लोग भूल जाते हैं। एक चीज है, अगर आप एनसीसी कैडेट हो तो ऑब्वियसली वो आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि आपको थोड़ी सी ज्यादा अवेयरनेस हो कि डिफेंस फोर्स क्या होते हैं। वो आपको ये नहीं पूछेंगे कि आर्मी या डिफेंस में क्या होता है या इन्फेंट्री में कितने कुछ है, वो आपसे एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। वो आपसे ये जरूर एक्सपेक्ट करेंगे कि भाई हमारे आर्म फोर्सेस की बेसिक चीजें क्या है, हमारे चीफ कौन है। ये तो आप सबसे पूछेंगे जो ऑब्वियसली हुआ दी एस्पिरेंट्स, बट आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल्स। वो आपको एनसीसी के बारे में थोड़ी चीजें पूछेंगे। अगर इसमें आप फॉल्टर हुए तो बी रेस्ट अश्योर्ड दे विल बी हैविंग सेकंड थॉट्स अबाउट यू, क्योंकि अगर मैं कह रही हूँ कि मैं 3 साल एनसीसी कर चुकी हूँ तो मुझे एनसीसी के बारे में पता होना चाहिए, और अगर नहीं पता तो मेरी गलती।
और ये और एक चीज है कि आपको ध्यान रखना चाहिए, एनसीसी कैडेट और नॉन एनसीसी कैडेट, आपको वहां जाके आपका वेट थ्रो नहीं करना है कि मैं तो एनसीसी कैडेट हूँ मेरा हो जाएगा. नो, you may have 100 camps done, but if you are lacking OLQs, sorry, you will not make the cut. If a candidate who has never worked in life, maybe, और वही सोबर शांत जिसने शायद जिंदगी में ज्यादा कुछ एक्सपोजर भी ना लिया हो, बट उसको उस सिचुएशन में अगर एसएसबी में डाल दिया और वो हर सिचुएशन क्लियर कर चुका, लाइक जीटीओ, साइकोलॉजिकल टेस्ट, दैट मीन्स उस कैंडिडेट में है ऑफिसर लाइक क्वालिटी, तो वो सिलेक्ट होगा. तो ये चीजें आपका माइंड सेट, नो व्हाट डू यू से, आपका माइंड सेट को ट्वर्क करना बहुत इंपॉर्टेंट है. इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द राइट बेनिफिट्स ऑफ एनसीसी, and it is a real big advantage. It will groom you as well. But yes, मैं सीनियर हूँ इसलिए मैं जूनियर्स को रगड़ा दूंगा, मैं ये करूंगा, वो चीज चलती रहेगी. इंपॉर्टेंट है आपको फौज में जाना है, तो उस पर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए. वाजिब है मैम, ये आपने वो काफी सही बात बताई कि एनसीसी वालों को एक वो सेंस ऑफ प्रिविलेज डेवलप नहीं होना चाहिए कि वी आर सुपीरियर देन अदर्स. साइमल्टेनियसली जो स्किल सेट वाली मैम ने बात की, जो आपका डिसिप्लिन इनकलकेट हो जाता है उस ट्रेनिंग के ड्यूरेशन, यू लर्न हाउ टू वियर अ यूनिफॉर्म, यू लर्न सम ऑफ द बेसिक ड्रिल्स, सो ऑल ऑफ दोज आर ट्रांसफरेबल स्किल्स जो आप आगे सर्विस में, और वो डिसिप्लिन तो लाइफ लॉन्ग आपको शायद हेल्प करेगा. मैम आपने एक वो अपनी बात की थी कि यू वेंट थ्रू द सीडीएस वाला एंट्री, मैं उस पर ही आना चाह रहा था. मैम वो एक बहुत फेमस लाइन है कि सौभाग्य ना सब दिन सोता है, देखे आगे क्या होता है. तो मैं जब आपकी सीडीएस वाली जर्नी देख रहा था कि वो सीट्स कम थी, फिर सीट्स इंक्रीज हुई, एंड देन यू गॉट, सो दैट वाज द काइंड ऑफ परसिवरेंस दैट यू शोड. मैम तो आपके एसएसबी जर्नी को लेके थोड़ा बात करना चाहूंगा. हाउ वाज योर एसएसबी जर्नी लाइक, एंड कोई उसका बहुत मेमोरेबल मोमेंट जो रहा हो आपकी एसएसबी जर्नी का, वो 5 डे प्रोसेस का. ओके, श्योर. और एक चीज मैं भूल गई बताना, एनसीसी का क्या फायदा होता है. आपकी ड्रिल इतनी हाई क्लास की हो जाती है, हाई क्लास लिटरली. तो जब आप अकेडमी में जाते हो ना, यू बिकम फेवरेट ऑफ योर ड्रिल उस्ताद. ड्रिल उस्ताद, मैं तो पर्सनली उनको कहती थी रावण की सेना. अगर मेरे कोई यहाँ पे उस्ताद सुन रहे होंगे तो आई एम वेरी सॉरी, बट वो एक्चुअली रावण की सेना थी. उनको देख के कैडेट डर जाएगा, दूर से भी 50 मीटर से भी वो लाल वाला हैकल दिख गया, मतलब लोग यहाँ पे कांपने लग जाते हैं. बट इफ यू आर गुड इन ड्रिल ना, यू आर फेवरेट ऑफ योर ड्रिल उस्ताद, फेवरेट. तो दिस इज अ वेरी बिग एडवांटेज, क्योंकि ड्रिल सीखना हर एक का नहीं होता, बिकॉज हम कहाँ जिंदगी में कोई नॉर्मल इंसान एक दो एक करता रहता है. बट इफ यू आर एन एनसीसी कैडेट, दैट्स अ वेरी बिग एडवांटेज, इवन इन फायरिंग. बट आई वुड से ड्रिल फॉर्म्स अ वेरी मेजर रोल इन योर ट्रेनिंग. तो आपने वहां छक्का मार दिया तो भाई आपकी एकेडमी आधी, नॉट आधी, बट 10-12% आपकी एकेडमी सेट है. ओके, सो अबाउट माई एसएसबी आई टेल यू. फर्स्ट थिंग, जब मैं पहली बार गई थी, मैं सबको बताती हूँ, मैं बड़ी ओवर कॉन्फिडेंस से गई थी कि प्राजक्ता देसाई जिंदगी में सब कुछ है और वो तो क्लियर करेगी. एंड मुझे लोगों ने बूस्ट भी बड़ा किया था, अरे तुम तो हो, तुम ही हो, करते हैं ना लोग. तो हमारे मतलब क्या कहते हैं, हवा भर जाती है सिर में, तो मेरे भी भर गई थी. I went for my SSB and I was screened out. जैसे मैं स्क्रीन आउट हुई, पहले तो मैं क्वेश्चन करने लगी कि आर यू श्योर कि मैं स्क्रीन आउट हूँ. मतलब ना, मुझे तभी भी बिलीव नहीं हो रहा था. बट जैसे मैंने बाकी लोगों को देखा, वो फोटोज के लिए खड़े हो गए, हमें बैग उठा के गाड़ी में रखा गया कि जाओ भाई अपना घर चले जाओ, ये लो पैसे, स्लीपर क्लास एसी, सॉरी स्लीपर क्लास ट्रेन का, निकलो. और जब मैं बैंगलोर गई थी 17 SSB, पूरी जर्नी में घर जाते थे, सो नहीं पाई और बस में, ये सोचते कि क्या हुआ मेरे साथ. इट टुक मी ऑलमोस्ट 1 वीक. जब मैं इनसे बात नहीं करती थी, मैं बुरा मानती थी, दोस्तों से झगड़े करती थी. बट आफ्टर 1 वीक आई रियलाइज के यू आर नॉट फिट राइट नाउ, यू आर नॉट एन ऑफिसर मटीरियल, सो दैट इज वाई गेट लॉस्ट. वेरी क्लियर, तुम नहीं हो, तुम्हारे में कुछ नहीं है. प्लस और माइनस, मतलब ये हाँ या ना होता है, बीच की चीज नहीं होती वहां पे. फिर उसके बाद मैंने खुद को बड़ा सिमर डाउन किया. मैंने कहा चलो, मैंने मेरे फ्रेंड से पूछा, गिव मी माय प्लस एंड माय माइनस पॉइंट्स, नेगेटिव पॉजिटिव. पेरेंट्स, फ्रेंड्स, टीचर्स, एक्चुअली पूछा मैंने उनको कि प्लीज भाई लिख के दे दो. एंड आई स्टिल हैव माय नोटबुक वेयर माय फ्रेंड्स हैव रिटन. और जिन्होंने मेरे नेगेटिव पॉइंट्स दिए ना, जितने भी, वो सब मैच कर रहे थे. और अंदर के अंदर मुझे पता था ये मेरे नेगेटिव्स है. स्टार्टेड वर्किंग ऑन दैट. आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग अ लॉट फॉर माय साइकोलॉजिकल टेस्ट के 4 मिनट में. देखो, स्टोरी क्या आएगी किसी के हाथ में नहीं होता, आपके हाथ में होता है कि भाई 4 मिनट में कैसे उसको यूटिलाइज करो, राइट स्टोरी लिखना.
कभी कभी ये होता है कि दिमाग में चीजें होती है, जबान पे नहीं आती या लिखी नहीं जाती, वो चीज को मैंने प्रैक्टिस किया। इवन फॉर वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, जो भी मैं सीख के आई थी मेरे इंस्टीट्यूट में जहाँ से मैंने ट्रेनिंग ली, आई स्टार्टेड डूइंग दैट अगेन। सेकेंड टाइम व्हेन आई वेंट फॉर माई SSB, आई वाज टोल्ड बाय देन माई फ्रेंड, नाउ माई हस्बैंड, दैट प्राजक्ता शांत रहना, तुम बहुत बोलती हो, शांत रहना। तो एवरी डे आफ्टर माई पेरेंट्स आई टू गिव मी कॉल, माई फ्रेंड देन माई वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स, मैं कहती थी यार ये हो गया ये हो गया, तो बोलता अच्छा ठीक है, गुड, फाइन, शांत रहना। सो आई केप्ट ड्रिलिंग दैट इन माई हेड कि यू नीड टू वर्क ऑन योर नेगेटिव्स, दैट इज यू टॉक अ लॉट, सिमर इट डाउन, उसको शांत करो। जिंदगी में मैं इतना शांत कभी नहीं रही थी जितना वो 5 दिन के SSB में रही। शांत रहने से मुझे पता चला कि you are able to concentrate more, you are able to listen what the GTO says। आप अगर SSB गए हो, जितने भी लोग यहाँ पे है, आपने सुना होगा GTO कहता है listen to me, these are the instructions, this is how you have to do। तो हमेशा अपने कान खुले रखो, आप शांत होंगे, आप अपने कान खुले रखेंगे। तो ये एक था। और मेरा नाम, we were 7 recommended, मेरा नाम 5th या 6th लिया गया था। मैं एक्चुअली कांप रही थी, मैं उठी, यस सर कहा, नो एक्सप्रेशन, एंड आई सैट डाउन। जनरली दैट्स नॉट मी, आई विल बी अ पर्सन हु विल बी शोइंग सो मच एक्सप्रेशन, बट मैं शांत रही। मेडिकल्स में भी चुपचाप शांति से मेरे पूरे मेडिकल्स करवाए मैंने। अब उसके बाद आई थी बात मेरे मेरिट की। सीट्स वर 10, आई वाज 21st इन मेरिट। तो मेरे को लगता था यार कहाँ, बट कहीं तो मेरे मन में था कि आई एम डेस्टिनीड टू बी हियर। एक मैनिफेस्टेशन बोलता है किसी चीज को कि जो चीज आप शिद्दत से चाहते हो, पूरी कायनात आपको एकजुट हो जाती है आपको लाने में। और मेरी जिंदगी में हमेशा ऐसा हुआ है। दैट्स एक्चुअली मैनिफेस्टेशन। आप जो चीज चाहते हो वो चीज होगी। तो मैं तभी आई थिंक आई वाज वर्किंग विद विप्रो में मैं काम कर रही थी एक BPO में। वहाँ पे फ्री फोन था, तो हमेशा मैं जाके फ्री फोन, क्योंकि STD के पैसे, सोचो यार उस जमाने में पेरेंट्स तो घर से भगा देते आप एवरी डे STD के पैसे मांगोगे तो मैं वहां से एवरी डे फोन करती थी आर्मी हेडक्वार्टर टू नो वेदर सीट्स हैव बीन रिड्यूस्ड। रोज दिल में एक धक-धक रहती थी, सुबह उठते ही शाम तक, रोज। फिर वहीं से मैं मेरे फ्रेंड्स को फोन लगा दी थी, यार कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ। फिर सीट्स हो गई 20, आई वाज अगेन 21। तो दोबारा इट्स लाइक पानी गले तक आ गया है, मतलब समथिंग लाइक दिस, कि अब कब आगे क्या होगा। यू आर 21। सो आई यूज्ड टू कॉल अप, आई यूज्ड टू कॉल देम, सर क्या होगा प्लीज बताओ। देन वो हमेशा मुझे कहते थे कि अगर कोई 20 में से एक छोड़ जाए ना तो आप इन हो जाओगी। मतलब अ सिंपल वे टू कन्विंस अ पर्सन। तो तभी मैंने मेरी एक फ्रेंड को, ही इज वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड्स, आशय, मैंने उसको कॉल किया था ना, दुखी होके कि आशय कुछ हो नहीं रहा। उसने मुझे एक कहा था कि द फैक्ट दैट यू आर रिकमेंडेड एंड मेडिकल इन तो यू आर डेस्टिनीड टू बी देयर, डोंट वरी, तेरा हो जाएगा। एंड आई वाज लाइक कैसे बात कर रही है, कौन अपॉर्चुनिटी छोड़ेगा, स्पेशली लड़कियों में जब सीट्स बहुत कम होती है, पीपल स्ट्रगल टू गेट इन मेरिट। बट आई थिंक मेरा नसीब अच्छा था। दे टुक अराउंड आई थिंक 23 cadets and I made into my cut and I was extremely happy. I thought I was a person who's privileged, or I was a late joinee. I joined 2 weeks late into the academy, but yes, I feel that मैंने जिंदगी में सोचा था कि मैं यहाँ पे जाऊंगी और वो चीज हुई। बिल्कुल मैम। ये वो मैम रोंडा ब्रायन की वो जो द सीक्रेट में वो बोलती है विजुअलाइज करो और वो यूनिवर्स कॉन्स्पायर करेगी मिलने के लिए, शायद वही वाली चीज थी मैम। आपकी काफी सारी चीजों से मैं रिलेट कर पा रहा था। सो वो एक उस्ताद का मैम हमारे NDA में भी होता था, ड्रिल उस्ताद का। सो हमारे यहाँ ऐसे बोलते थे कि एक तरफ अगर भगवान खड़ा है और एक तरफ ड्रिल उस्ताद खड़ा है, और ड्रिल उस्ताद बोलते दाएं मुड़, भगवान बोले बाएं मुड़, सारे के सारे बाएं मुड़ेंगे। सो दैट वाज ड्रिल उस्ताद का चीज मैम। ऑल्सो एस्पिरेंट्स को यहाँ पे मैम के उससे कुछ टेक अवेज जो नोट डाउन करने चाहिए स्पेसिफिक, वो एज पर माय ओपिनियन वाज वन ऑफ द थिंग दैट इज वेरी कैरेक्टरिस्टिक इज कि मैम ने अपने फेलियर को किसी दूसरे आउटसाइड फोर्स पे एट्रीब्यूट नहीं किया, rather it led to introspection। सो कई बार ऐसा होता है कि मैम धूल चेहरे पे थी, आईना साफ करते रहे बच्चे की, वो SSR खराब था, ग्रुप खराब मिला। सो दैट इज अगेन वेरी डिफिकल्ट फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, बट टू इंटरनलाइज दैट थिंग दैट देयर वाज
lacuna on my part और उस पे work around करना. So that is one very important takeaway. Second, on a lighter note, मैम काफी सारे एस्पिरेंट्स क्या होते हैं, वो सोचते हैं रिलेशनशिप, ऑल दीज थिंग्स दे वुड जस्ट पुल अस डाउन फ्रॉम आवर प्रिपरेशन और अवॉइड करें टॉक्सिसिटी, उन सब डोमेन में सोचते हैं. देयर इज अ लाइव एग्जांपल हाउ थिंग्स कैन हैप्पीली टर्न अराउंड एंड दे कैन लीड टू वेरी फ्रूटफुल रिलेशनशिप्स. सो दैट्स अ लिविंग एग्जांपल मैम. I'll tell you something about this. Okay, don't bother about time. I'm just loving how we are talking, so we can just go, for more time. मैं ये चीज बोलना चाहूंगी, ये कब होता है जब हम कहते हैं ग्रुप खराब मिला, नसीब खराब है, जीटीओ ही बेकार है मेरा. इट हैपेंस जब हम डिनायल मोड में होते हैं. जब मैं डिनाई ही करूंगी ना, जब मेरा दिमाग है मैं बंद कर दूंगी ना, डिनाई में रहूंगी, तब मैं ये चीज बोलूंगी. क्यों मैं भी ऐसी थी यार. फॉर फर्स्ट 1 वीक आई थॉट यार मुझे कैसे तुमने स्क्रीन आउट कर दिया, मतलब मैं तो खुद को कुछ और ही समझ रही थी. बट यस, जब आप जिंदगी में शांत रहते हो ना, मतलब जब पानी नीचे उतर जाता है, आप मतलब यू गेट डाउन ऑन अर्थ, तब रियलाइज होता है कि आप भी गलत हो, हमेशा गलत रहोगे, आप फिट नहीं थे. और सेकेंड थिंग अबाउट दैट लव थिंग, आई ऑनेस्टली टेल यू, फॉर मी इट हैज नेवर बीन एन हिंडरेंस. बिकॉज यार जिंदगी में ना प्यार से हर चीज नहीं होगी. आई एम टॉकिंग अबाउट दैट काइंड ऑफ लव, अफेयर्स एंड ऑल. जिंदगी उससे नहीं चलती, पेट उससे नहीं पलते. यस, आपके लाइफ में कोई पार्टनर है जो आपको खुश रखते हैं, आपकी चीजों में आपको हेल्प करते हैं. उस इंसान के साथ रहो जो आपके पंख नहीं काटता हो. ये लड़की लड़कों सबके लिए इम्पोर्टेंट है. जो आपके पंख काटे ना, वो आपके लिए फिट नहीं है, जिसके लिए आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़े. जो इंसान आपके पंखों को खुलने दे और बोले यस गो टेक अ लीड, ऐसा इंसान चाहिए. और रिलेशनशिप में क्या, अगर आपका है यार, मुझे लगता है कि अभी मेरी एग्जाम है, नहीं मैं बात करूंगी 2 महीने, अब कौन सा, अगर प्यार है तो कहाँ जाएगा वो इंसान, कहीं नहीं जाएगा, वो वहीं रहेगा. और अगर प्यार नहीं है, चल ही रहा है टाइम पास, तो लोग तो ऐसे ही चले जाएंगे. तो इसमें क्या इतना सोचना. तो इट मस्ट नॉट, इफ इट्स अ ट्रू रिलेशनशिप, इट इट गोज अहेड. आई नो माई हस्बैंड सिंस 2006. वो मेरे फ्रेंड थे, मैं उनको तब से जानती हूँ. तो शायद हम बच्चे थे, जस्ट आउट ऑफ 12th के बाद, मैं फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज में उनसे मिली थी. वी वर फ्रेंड्स देन. तो आई नो दैट पर्सन सिंस देन. अब कितने साल हो गए, 15 साल 16 साल हो गए हम लोगों को एक साथ. तो अगर हम एक साथ ऐसे ही जुड़े रहते कि भाई घूमने जाओ, यहाँ जाओ, वहां जाओ, तो कॉन्सेंट्रेट करियर पे नहीं कर पाते. हर चीज करनी चाहिए, हर चीज की लिमिट होती है. हमें हमारी लिमिट जाननी चाहिए. True, ma'am. So this is a very important takeaway for all the lovebirds we have today in the session. कि love, but love responsibly and maturely.